गुजारिश हूँ तमाम अहबाब से जो सामने खड़े हैं कि वो फर्शेगा पे तशरीफ़ ले आए ताकि मजलिस अज़ा का बाकायदा आगाज़ किया जा सके। मजलिस अज़ा का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ करता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बुलंद सलावत अला मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यज़ीदियत, यज़ीदियत है हमारी मर्सिदा, है हमारी मर्सिदा। हक का सीधा रास्ता, शहादतों का रास्ता, हुसैनियों का रास्ता। दोनों हाथ बुलंद करके यकबानों के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। तमाम अहबाब मिलके दुआए माना तलावत फरमाए, फिर इसके बाद मैं दुआ तवस्सुल तलावत फरमाऊंगा। तमाम मोमिन मिलके दुआए माना लहसना तलावत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलावतुका सदरुल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका नबिय्यर रहमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अबल कासिम या रसूलल्लाह या इमामुर रहमान या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना। सब मिलके या वजीहा इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह या वजीहा इंदल्लाह
اشفع لنا عند الله يا أبا السماء أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا عجب العيالات قلبهم يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا فتيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتمع يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا عمر العابدين يا ابن رسول الله يا عبد الله يا على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا عبد الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا رسول الله يا رب الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا
اشفع لنا عند الله يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النبي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله تمام وقت है يا وسيل حسن القلب الحجة المهدي ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا السادة والوالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجاتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوني عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبقربكم أرجو جهات من الله فكونوا عند الله رجائي يا ساداتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين 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 يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد
मोहम्मद। पहला से ठीक है। बारे जिक्र बुलंद से बात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। शरी हाल हम शियाने हजर करार में यकम मुहर्रम से यौम आशूर तक शुहदाए करबला की आज़ादारी बपा की है। जितने अज़ाओ करबा सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में शहीद हुए, हमने यकम मुहर्रम से लेकर यौम आशूर तक, यौम आशूर से असर आशूर तक उनकी अज़ादारी की, उनके पुरसे पड़े, उनके लिए मातम किया, उनके लिए ज़ंजीर ज़नी हुई, सीना कुबी हुई, कुम्मा ज़नी हुई, नोहा खानों में मुँह पड़े। उलमा इकराम ने अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल बयान किए, उनके मसाइल बयान किए। ज़ाकिरीन ने भी अपने अंदाज में, अपने तरीके से बारगाह मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद में नजराना अकीदत पेश किया। जो सहबान पढ़ न सकते थे उन्होंने पानी की सबील लगाई। जिनके पास अहले बैत अतहार के सदक़े में ज़ाते किबरिया ने रिज़्क़ की फरावानी दे रखी थी, उन्होंने लंगर का एहतमाम किया। खूबसूरत से खूबसूरत, आला से आला, यानी हर शख्स ने ये कोशिश की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये पसंदीदा मखलूक अहले बैत अतहार जो हैं ये हमसे राज़ी हो जाए। उनकी रज़ा के लिए पूरी मेहनत की गई, क्योंकि अल्लाह ने जो कहा था कि जो मेरा जिक्र बुलंद करता है मैं उसका जिक्र बुलंद कर देता हूँ। तो इस बात पर अमल हुआ मैदान करबला में कि वहाँ पर अल्लाह का जिक्र बुलंद किया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र बुलंद कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। पूरी कायनात में 18,000 मखलूक़ात अर्ज़ी व समावी में वाहद शख्सियत है हुसैन कि जिनके नामे नामी इसमें ग्रामी पर सबसे ज्यादा खर्चा होता है। जो यूनाइटेड नेशन है ना, जिसे इक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से दुनिया के निज़ाम पे नज़र रखती है और होने वाले अखराजात का हिसाब लगाती है। उनके हिसाब के मुताबिक कायनात में जिस शख्सियत पर लोग सबसे ज्यादा माल खर्च करते हैं, सबसे ज्यादा जिसकी बारगाह में खून बहाते हैं, वो हुसैन इब्न अली है। दूसरी बात कि मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं कायनात में, उन मज़ाहिब में हिंदू मज़हब जो है ये सब कॉन्टिनेंट में, बरे सगीर में बहुत बड़ा मजहब है। इस मजहब के पैरोकार एक सालाना मेला लगाते हैं जिसे इलाहाबाद का मेला कहा जाता है। उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 3 करोड़ के दरमियान हिंदू शिरकत करते हैं। मुसलमानों का इज्तिमाई सबसे बड़ा इज्तिमा वो हज के मौका पर होता है, उसमें अभी करोड़ की तादाद नहीं हुई, मगर कुर्बान जाऊं वाहिद शख्सियत है हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनके चेहलों पर, अरबाइन पर 7 करोड़ तक अफराद की तादाद जो है वो नोट हुई। हर मजहब के लोग अपने मजहब के अफराद की इज्जत व तौकीर करते हैं, उनकी तबलीग करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। दीन इस्लाम की वाहिद शख्सियत है हुसैन
कि कोई कायनात का ऐसा मजहब नहीं है वो मजहब जिसमें इंसानियत की पहचान हो, जिसमें गैरत व हमीयत की पहचान हो। अगर किसी मजहब में उसकी पहचान है तो वो दरवाज़े हुसैन पे ही आता है कि यहीं से पता चलता है कि माँ का एहतराम क्या है, बहन का एहतराम क्या है, बीवी का एहतराम क्या है, बेटी का एहतराम क्या है। ये जिसने बताया है उसे हुसैन कहते हैं। आशूरे के बाद 10 मुहर्रम के बाद 11 मुहर्रम से जो अज़ादारी बपा हो रही है, ये अज़ादारी असीराने करबला की है। ये अज़ादारी मखदूम कौनैन शहज़ादी दारैन उम्मुल मसाइब बीबी पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अज़ादारी। अल्लाह के दीन को मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को जिसने जिंदा व जावेद किया उसे हुसैन कहते हैं, और इमाम हुसैन को जिसने बकाए दवाम बख्शी उसे ज़ैनब कहते हैं। और बीबी पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और सैयदुल साजिदीन मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम के वो रोशन सितारे हैं जिन्होंने इंसानियत को हमीयत में सिखा दी और बारगाह इलाहिया में हाजिर होने के तरीके भी बता दिए। अगर कोई शख्स ये चाहे कि मेरी अल्लाह से लौ लग जाए, मुझे मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डायरेक्ट तार मिल जाए, तो वो बारगाह सय्यद सज्जाद अलैहिस्सलाम में आए और इस दरवाजे से अपना दामन फैलाकर खैरात मांगे, सहीफ़ा सज्जादिया का मुतालिया करे, तो यकीनन उसके राब्ते अल्लाह से हो जाएंगे। अब हम जिस अज़ादारी में शरीक हैं ये बीबी पाक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और सैयदुल साजिदीन मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी है। हमारे दरमियान इस वक्त ममलकत खुदादाद इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान के नामवर मनकबत खां इज़्ज़त माब आगा सैयद कमर अब्बास नकवी साहिब तशरीफ फरमा है। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये बरसर मंबर जलवा फरोज हूँ और मनकबत पेश फरमाएं, और आप तमाम साहिबान से इल्तमास करूँगा कि आप बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जितने नाज़रीन मौजूद हैं अपने दिलों में जो हाजत लेकर आए हैं इस फर्श अज़ा के सदक़े में मौला उनको कबूल मंजूर फरमाए। जो मुश्किलात दरपेश हैं ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में मौला उन मुश्किलात को आसान फरमाए। जो कर्ज़दार हैं मौला उनके कर्ज़ों को माफ़ फरमाए। जो घरों में अस्पतालों में बीमार हैं मौला उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। जो मोमिनीन मोमिनात बे औलाद हैं उनको नेक सालिह मातमी अज़ादार औलाद अता फरमाए। बानियाने मजलिस मौला इनके तौफ़ीक़ खैर में इजाफ़ा फरमाए और इनकी नस्लों में अज़ादारी को इसी तरह कायम दायम फरमाए। आप हाज़रीन मजलिस जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं मौला आपकी भी नस्लों में अज़ादारी को इसी तरह ता क़यामत कायम दायम फरमाए। इमाम ज़माना के ज़हूर में मौला ताजील फरमाए, हमें इमाम के अंसारी में शुमार फरमाए, सही मानों में इमाम ज़माना की मारिफत नसीब फरमाए।
इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलावत। अपनी मकरी का आगाज इब्तिदाइया के तौर पर एक क़ता अपने समातों के हुज़ूर पेश करता हूँ कि 9 लाख के लश्कर से अकेला जो लड़ा है, 9 लाख के लश्कर से अकेला जो लड़ा है, क़यामत में वो काबे की पसीनों से बड़ा है। 9 लाख के लश्कर से अकेला जो लड़ा है, क़यामत में वो काबे की फसीलों से बड़ा है। और शब्बीर सखी अपने सवाली की मदद कर, शब्बीर सखी अपने सवाली की मदद कर, कशकोल लिए हाथ में इस्लाम खड़ा है, कशकोल लिए और एक और कतार की समातों के हवाले कर, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कलाम तिलावत करूँगा कि उसी का जिक्र सफ़े अज़ा में रहता है, उसी का जिक्र सफ़े अज़ा में रहता है, सना गुजार जो बज़्मी अज़ा में रहता है। और हुसैन तेरा अज़ादार सारी दुनिया में, आप सबकी नुमाइंदगी करते हुए ये शेर पढ़ रहा हूँ, हुसैन तेरा अज़ादार सारी दुनिया में, जहां भी रहता है दिल करबला में रहता है, जहां भी रहता है दिल करबला में रहता है। एक सलवात का सहारा दे और कलाम का आगाज करूँ। सिलेक्शन वो की है कि जो आपके मेयार के मुताबिक हो, आपकी समातों के मुताबिक हो, और आप उसको समझें भी और दाद भी दें, अगर दाद उसका हक बनता है तो। हर अज़ादार को ज़वार बनाया जाए, दुआ करें कि मौला इसी साल हर उस मोमिन को करबला जाना नसीब करें जो आज तक करबला नहीं गया, और जो गए हैं मौला उनको बार बार जाना नसीब करें। हर अज़ादार करबला में मुझे हर बार बुलाया जाए। और आप इस पर से अज़ा पर बैठे हैं, जिस मजलिस हुसैन में बैठे हैं, उसकी फजीलत, उसकी अजमत, उसकी बरकत क्या है, और यहाँ पर क्या बयान होता है। यहाँ तो ही सबको शबीर की मजलिसों में बुलाया जाए। मिलकर आ रहा है गरीब, सबको शबीर की मजलिसों में बुलाया। अगरचे आवाज
इस काबिल नहीं है, लेकिन ये मौला का जिक्र है और मौला की ही इमदाद होती है। गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन गला साथ छोड़ जाए, आपने साथ नहीं छोड़ना, ठीक है। हर रज़ादारी को ज़वार बनाया जाए। और शेर देखिएगा, आप सबकी नुमाइंदगी करते हुए शेर पढ़ रहा हूं कि मुझको आदत है जुलूसों में अलम छूने की। जो अलम छूता है वो लोग कम से कम हाथ उठाए, दाद दे, उसका हक बनता है। मुझको आदत है जुलूसों में अलम छूने की, मुझको आदत है जुलूसों में अलम छूने की। फिर क्या किया जाए? मेरी तौबत पे अलम पे लगाया जाए। ओ पीछे वाले बोलने का नारा है, मेरी तौबत पे अलम पाक लगाया जाए। हर रज़ादारी को ज़वार बनाया जाए। कलाम पसंद आ रहा है आप सबको? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह, मौला आपको रज़ाए खैर दे। मैं मिस्र आपके समासों के बेदार समासों के हवाले करता हूँ। देखिएगा इस शेर का पहला मिसरा नासिर भाई कि अगर ये चीज हो जाए तो जिंदगी का हासिल हो जाए। वो क्या है कि बस मेरा क्या आज़ादार हुसैन, इससे बड़ा ताल्लुक क्या है? बस मेरा नाज़िम मिंबर, नक़ीब मिंबर दुआएं करवाते हैं, इस बीमार के लिए दुआ, उस बीमार के लिए दुआ, उस बीमार को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है उसके लिए दुआ करें। मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि जिसको दुनिया के तबीबों से नहीं मिलती शिफा, जिसको दुनिया जाके फुतुरस के मसीहा जाके फुतुरस के
मसीहा को दिखाया जाए। और आप अज़ादारों में जितने मातमी बैठे हैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ शेर। यकीनन हर अज़ादार ही मातमी होता है, लेकिन शेर देखिएगा कि हश्र में हाथ में गाज़ी का अलम लेके चलूं, हश्र में मुझको बस मातमी हल्के से उठाया जाए। मिल गया मुझको बस मातमी हल्के से उठाया जाए। करबला मुझे हर बार बुलाया जाए और मेरी रग रग है नबी, मुझे बतना न सुना। जो लबीरी यहाँ पर बैठने के लिए पढ़ा मेरी रग मुझे बतना सुना, बस विलायत का सफर मुझे सुना जाए। बस विलायत का सफर मुझे को सुनाया मिसम के मुरीदैन बैठे हैं उनके लिए बिलखुसूस ये मिसरा पढ़ा हदिया कर रहा हूँ कि मुझको भी शौक है मिसम की तरासूली का। जुबान से इकरार करना आसान है, करके दिखाना मुश्किल है, और मिसम ने करके दिखाया। हाय हाय हाय, मुझको भी शौक है मिसम की तरासूली का। इश्क है कभी जाए, इश्क है एक शेर मैंने बिलखुसूस मातमी के लिए पढ़ा था, नहीं इसी कलाम का एक और शेर बिलखुसूस मातमी के लिए पढ़ता हूँ कि मेरे मरने पे फरिश्तों से कहा जाए सुनो। ये आपकी तरफ से नुमाइंदगी, आप कितने हाजिर मजलिस बैठे हैं। मेरे मरने पे फरिश्तों से कहा जाए सुनो, मातमी के लिए जन्नतों सजाया जाए। मातमी के लिए जन्नत को सजाया जाए। और इस कलाम का आखिरी शेर मक्ते के तौर पर पढ़ता हूँ।
ये हमारे माशाल्लाह से शिया कम्युनिटी की एक बड़ी फेमस पोइटस हैं, शायरा हैं, जनाब फाखरा बतुल नकवी साहबा, उनका लिखा हुआ ये कलाम है और इसी कलाम का मक्का आखिरी शेर के तौर पर पढ़ता हूँ। आखिरी शेर इस कलाम का, लेकिन देखिएगा कि इख्तिताम कैसा खूबसूरत हुआ कि एक हसरत है मेरे हाथों से महशर में बतूल, एक हसरत है मेरे हाथों से महशर में बतूल, मुजरिम करबला में मुझे हर बार बुलाया जाए, हर वज़ादार को सवार बनाया जाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। दरूद इस तरह से पढ़ने की कुछ पढ़ने को दिल करे, बुलंद कर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक और कलाम आपकी समाअतों के हवाले करता हूँ। अभी ये कलाम हुसैन ज़हरा में पढ़ के आया हूँ, वहाँ पे मोमिनीन ने बहुत मोहब्बत दी और यकीनन आप में भी बहुत मोहब्बत दी है। समाअत आपकी माशाअल्लाह से बहुत बुलंद है। देखते हैं कि आप इस कलाम को किस तरह से समाअत फरमाते हैं। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा मोहम्मद। जो दरिया पे निहत्ता रहा है, जो दरिया पर निहत्ता आ रहा है, यकीनन आप पहचान रहे होंगे कि ये किस शख्सियत के हवाले से है। बिस्मिल्लाह। जो दरिया पर निहत्ता आ रहा है, सिपा सालारे फौजी हुसैनी मौला गाजी अब्बास, जंग की इजाजत नहीं दी मौला ने, इजाजत दी सिर्फ पानी लाने के लिए, तलवार नहीं दी सिर्फ। इसलिए कह रहा हूँ जो दरिया पे निहत्ता आ रहा है, जो दरिया पे निहत्ता आ रहा है, कौन? अली का बेटा अली का बेटा आ रहा है। देखिए ये मुझे भी पसीना आ रहा है, लेकिन ये गर्मी का पसीना है। एक और भी पसीना है। जब सिपा सालार फौजी हुसैनी लश्कर की तरफ रवाना होता है तो फिर क्या होता है? मैं पढ़ रहा हूँ बाबा की, मैं रहा हूँ बाबा की, समंदर पसीना समंदर को पसीना आ रहा है, जो दरिया पर निहत्ता आ रहा है।
वैसे देखिएगा बिलखुसूस नासिर भैया माशाल्लाह नकीब मिंबर है, नाज़िम मिंबर है, लेकिन इल्म के साथ आपका बड़ा ताल्लुक है। देखिएगा शेर किस तरह से बयान हो रहा है। कतारें बांध लो, आपके और मेरे सजदे की बात नहीं है। किसके? कतारें बांध लो नबियों के सजदे, कतारें बांध लो नबियों के सजदों। क्यों? फलक पर सजदा को आकाश बना देती है। फातिमा ज़हरा के बच्चों की गुलामी कर लो, अब्बास बना देती है। अज़मत मोहम्मद मुस्तफा बुलंद पर सलावत। इस तरह से नहीं, आंसू सा कोई दूर कोई मूंगा नहीं होता, 100 बार यही बात कहूँगा नहीं होता। और मजलिस में जो आए हो तो खामोश न रहना, शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं। बुलंद तर सलावा अल्लाहुम्मा सल्ली हाँ, जो दरिया पर निहत्ता
तो आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन अगर सुना भी होगा तो शायद मेरे से सुना होगा। तबारक तबारक के हवाले से वह तबारक हम चाहते हैं और वह तबारक हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। आपने मेरे साथ हैं और देखते हैं कि सिलसिला कैसे अपने शौक से है। ठीक है, एक बार
Wow.
कोई सौदा नहीं होने देंगे। हमारा हुसैन
नौकरी का हिस्सा किताब को पहुंचता है
के बाद